Saurabh, just let me know whenever we are ready to start. Yes, sir. I think we can start, sir. Okay. So, I think few participants are missing. We have 40 right now, sir. But they will join, sir. You can start. Otherwise, we will be missing out on our time, sir. Okay. Uh-huh. Okay, fine. So this is where we were. We have come up to the insert tab. Okay. So see, just going into deep in depth in only 2 ribbons has taken up like 1 hour. Okay. So you can just imagine the power that MS Word gives you, but we don't know about it. Okay. So everyone may please switch on your camera. I will also switch on my camera. Okay. So now we are starting with the third ribbon. Not only the second one ना, ये हो गया था इक्वेशन वगैरह आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल यहाँ से कर सकते हो, वेरी सिंपल थिंग्स. नेक्स्ट कमिंग टू द पेज लेआउट. ओके, पेज लेआउट इज प्रीटी बेसिक. थीम्स वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कलर्स यहाँ से कर सकते हैं, बट जनरली हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, सो वी डोंट यूज मच ऑफ कलर्स एंड मच ऑफ थीम्स एंड मच ऑफ डेकोरेशन. फॉन्ट्स यहाँ से सेट हो जाते हैं, बट जनरली वी यूज हार्ड कोडेड आइदर एरियल और टाइम्स न्यू रोमन और बुक एंटिका और कैलिब्री. दैट्स इट. दीज आर द 4-5 स्टैंडर्ड फॉन्ट्स दैट वी यूज. And effects. So these kind of things generally we don't use in our formal official documents. Margins, you know, orientation, you know, size, you know, columns is generally, yes, column is useful for one case where you want to design some template. Okay, so a pamphlet kind of thing. So for example, I want to create a pamphlet which is of 3 pages like this: first page, third page, second page, and then third page, which is to be folded like this. In that case, you can go ahead with the columns. So let's try to design one orientation as landscape, margin as narrow, and column as 3. So यहाँ पे ना इस तरह से आपने कंटेंट जो भी लिखा, मैं इसी में से ले लेता हूँ. तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो कंटेंट है वो 1 by 1 आएगा. ओके, इसका बेनिफिट ये है. सो जब आप यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिक अगली वाली लाइन पे एडजस्ट हो जाएगा. जनरली व्हाट पीपल यूज टू डू इज इन जनरल इज लाइक दिस. व्हाट दे डू इज दे गो टू पेज लेआउट, मेक इट लैंडस्केप एंड इंसर्ट करके टेबल बना देते हैं वो एक इस तरह से. फिर यहाँ पे वो कुछ कंटेंट डालते हैं और फिर इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं और फिर इसमें कुछ कंटेंट डालते हैं लाइक दिस. बट जब यहाँ पे कंटेंट ऐड होगा तो वो अपने आप अगले रो में नहीं जाएगा. But if you are using columns and if you add rows or you delete it, it will go into the next columns. So that is a benefit of this thing. And you can try to minimize the borders. It will always be like exactly divided by 3. The table columns can be disproportionate, but here the columns are always going to be 1:3. Okay, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, like that. So and margin also, if you are setting the margins, they will be equally distributed in all the 3 columns, and content will flow from one column to another column like this. So this is the benefit of columns when we are designing pamphlets. So 3 pamphlets like this, when you fold like this and like this, उस तरह की पैम्पलेट बनाने में बड़ा काम है. जैसे ये कंटेंट है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करें और फिर उसका ऐसे फोल्ड करें. इस तरह की पैम्पलेट बनाने में आपका कॉलम्स का यूज होता है. ओके, सो कॉलम्स हो गए. ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट. ब्रेक्स में आप कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आई होगी जिसमें कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में कुछ पार्ट है जो लैंडस्केप रखना है और कुछ पार्ट है जो आपको पोर्ट्रेट रखना है. हो सकता है
कुछ एक विड्थ चौड़ी वाली टेबल है जिसमें आपको वो वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो वाला पेज आपको लैंडस्केप रखना है, बाकी सारे पोर्ट्रेट रखना है, या कुछ सिलेक्टेड पार्ट है जिसको आपको लैंडस्केप रखना है, बाकी पोर्ट्रेट रखना है। तो उसके लिए इन दैट केस यू कैन यूज ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक्स. ओके, आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दैट. So for example, this particular segment from here to here, I want this particular segment to be in landscape. बाकी सारा portrait चाहिए. So what you can do is you can go to, you can select this particular cursor, यहाँ पे रखिए अपना, select this point here and go to breaks and section break में आप जाइए next page, not page break, it should be section break. Okay, click on section break to the next page. Okay, so it will insert a kind of page break, but it will be a section break. So this is the new page which has come here, और ये आपको कहाँ पे खत्म करना, यहाँ पे खत्म करना था, यहाँ पे खत्म करना, ठीक है, यहाँ पे खत्म करना. तो यहाँ पे जाके फिर से एक सेक्शन ब्रेक लगा दो, go and click on next page, section break, next page. तो अब अगर if you show the hidden marks, you will see a section break here, a section break here, and a section break somewhere here. यहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा. ओके, सो सेक्शन ब्रेक हियर एंड अ सेक्शन ब्रेक देयर. तो दो सेक्शन ब्रेक लग गए. उसके बीच के डॉक्यूमेंट में आप जो चेंजेस करोगे वो सारे दो सेक्शन ब्रेक के बीच में होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा. तो लेट्स से इफ आई मेक द ओरिएंटेशन एज लैंडस्केप, तो ये लैंडस्केप जो होगा ये केवल दो सेक्शन ब्रेक के बीच होगा. इसके पहले का पोर्ट्रेट रहेगा, सेक्शन ब्रेक से सेक्शन ब्रेक के बीच में लैंडस्केप हो जाएगा, बाद में फिर से वापस से पोर्ट्रेट आ जाएगा. तो आप इस डॉक्यूमेंट में इनफैक्ट देखिए, आपके यहाँ से यहाँ तक लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ये वाला आपका लैंडस्केप, और फिर से आपका यहाँ से यहाँ तक पोर्ट्रेट. तो ये इसका बेनिफिट है कि व्हाट यू कैन डू इज इवन यू कैन चेंज द पेज साइज. तो हो सकता है यहाँ पे आपकी कुछ ड्राइंग्स हो जो कि आपकी बड़ी साइज में आनी है ना, आपका प्रिंटर है जो कि A4 A3 दोनों प्रिंट कर सकता है, एंड यू वांट दिस पर्टिकुलर शीट्स टू बी प्रिंटेड ऑन A3 साइज. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन, आपने पेज ब्रेक इंसर्ट, सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किए हुए हैं, नाउ यू गो टू साइज एंड मेक इट A3. ठीक है, अभी देखिए आपके एक ही डॉक्यूमेंट में ये आपके A4 है, शुरू के 4 पेज, उसके बाद में 3 पेज A3 साइज है, उसके बाद फिर से A4 साइज आ गया. ओके, सो combination of page, even margins, whenever you are changing margins will be affected only from between the section breaks. सेक्शन ब्रेक के आगे और पीछे में उसका इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, पेज नंबरिंग फॉर्मेट, पेज नंबरिंग फॉर्मेट जैसे आपको कुछ इनिशियल पार्ट में आपको चाहिए होता है रोमन फॉर्मेट, और उसके बाद में जब चैप्टर मेन स्टार्ट होता है उसके बाद से आपको चाहिए न्यूमरल फॉर्मेट. वो सारा भी आप सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल से कर सकते हो. तो आपका जहां रोमन और न्यूमरल का गैप है उसमें आप पेज ब्रेक देने की बजाय सेक्शन ब्रेक दे दो. सेक्शन ब्रेक दिया आप, उसके बाद में वो न्यूमरल्स में, वहां के बाद में न्यूमरल्स होगा, उसके पहले का रोमन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी यूजफुल. तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए अलग फाइल बनाते हैं, इस पार्ट के लिए अलग फाइल बनाते हैं, फिर इस पार्ट के लिए अलग फाइल बनाते हैं. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन यूज सेक्शन ब्रेक फॉर different behavior of word format and page layout and margin layouts within the same document. सेम डॉक्यूमेंट में रखने का फायदा क्या है कि आपके वेरिएबल्स, फील्ड्स, ये सब काम करते हैं, पेज नंबरिंग डिस्टर्ब नहीं होती है, हेडर फुटर सारे कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो ये इसका प्लस पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पे जाते हैं. लेट मी जस्ट रीसेट द पेज साइज बिफोर कंप्लीट. और इस सेक्शन को मैं भी डिलीट कर देता हूँ, को भी डिलीट कर देता हूँ. कहाँ चला गया? ओके, सो नाउ
ये हो गया आपके ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक, इवन पेज, ऑड पेज। इवन पेज, ऑड पेज ये होता है कि वो जो सेक्शन ब्रेक आपने लगाया उसके बाद का जो अगला पेज होगा वो हमेशा इवन होगा या ऑड होगा, ये भी सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बुक है, सो बुक फॉर्मेट में क्या होता है, मेरा वीडियो अवेलेबल है, यू कैन सी वीडियो। सो बुक में क्या होता है, दिस इज पेज नंबर 1, देन दिस इज पेज नंबर 2, देन दिस इज पेज नंबर 3। तो नया चैप्टर आपका शुरू होता है हमेशा ऑड से चालू होता है, कभी भी नया चैप्टर आपका इधर से चालू नहीं होगा। ऑलराइट, तो हमारा ये होता है जब भी चैप्टर होता है या जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो हमेशा हम इवन ऑड नंबर से चालू करते हैं, इवन से चालू नहीं करते। वो भी आप सेक्शन ब्रेक से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपके डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी जगह पे एक जगह पे सेक्शन ब्रेक लगाते हो एज अ सेक्शन ब्रेक फॉर इवन पेज और ऑड पेज, अगला वाला पेज इवन या ऑड ही होगा। और इन केस वो इवन आपने ऑड वाला पेज का लगा रखा और मान लो इवन होता है तो एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये चीज आप प्रिंट के टाइम पे, वो दिखाई नहीं देगा लेकिन प्रिंट के टाइम पे हो जाएगा। ओके, इसको आप ट्रायल कर सकते हो अपने एंड पे, सेक्शन ब्रेक्स को अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, लाइन नंबर्स जनरली नॉट रिक्वायर्ड, बट ये जब प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसमें ये आपको लाइन नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ओके, लाइन नंबर्स का ये उसमें बताने में अच्छा रहता है कि एट लाइन नंबर से 33 यू हैव गॉट सम स्पेलिंग मिस्टेक्स और सम पैराग्राफ एरर्स, और जब आपको रेफर करना होता है तब आप बता सकते हो कि लाइन नंबर 42 में ये चेंज करना है, लाइक दैट। लाइन नंबर आप चाहे तो दे सकते हो, अदरवाइज जनरली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड यू कैन रीस्टार्ट एट ईच पेज। लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगी, इसमें हर एक पेन 1 से स्टार्ट होगी। ओके, लाइक दैट। ओके, जनरली हम इसको इस्तेमाल ज्यादा करते नहीं है। हाइपरनेशन जनरली हमको रिक्वायर्ड नहीं होता है। वाटरमार्क्स आपको ड्राफ्ट कॉपी या बैकग्राउंड में आपको सीडब्ल्यूसी का लोगो लगाना है, वो सारा आप वाटरमार्क करते हो। तो कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और आप पिक्चर वाटरमार्क करके आप अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लोगे तो वाटरमार्क लगा देगा। देखिए आया वाटरमार्क, डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है वाटरमार्क, बहुत लाइट है पर दिख, राइट। तो आप वाटरमार्क में इनफैक्ट इसको पिक्चर को मैं चेंज करता हूँ कि ये एबीपी का लोगो लगाते हैं एंड ये देखिए एबीपी का लोगो आ गया। तो इस तरह सीडब्ल्यूसी का लोगो आपको अगर वाटरमार्क लगाना है तो आप लगा सकते हो। ओके, so this kind of watermarks can be done. It can be for draft copy, for sample copy, for confidential copy or do not, इस तरह का टेक्स्ट वगैरह भी आप लगा सकते हो। ओके, पेज का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टू चेंज द कलर ऑफ पेज। पेज बॉर्डर्स आप यहाँ से पेज बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। वी आर नॉट गो इनटू डिटेल। इंडेंट, स्पेसिंग सारे कॉमन फीचर्स हैं, इसमें भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। रेफरेंसेस ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसेस में हमने देखा था शुरुआत में हमने यहाँ पे स्टाइल, ये स्टाइल्स हमने यहाँ से लगाई थी। ओके, तो इन स्टाइल्स का बेनिफिट ये है आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर का नंबर किस पर्टिकुलर पेज नंबर पर है, उसको मैनुअली देखना और फिर उसको टेबल ऑफ कंटेंट में टाइप करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें गलती के भी चांसेस है। सो व्हाट यू कैन डू इज you can go to reference and go to table of content। स्टाइल लगानी पड़ेगी, ये आपने स्टाइल्स अगर लगा रखी है आपके डॉक्यूमेंट में, इस तरह की स्टाइल्स लगा अगर आपने, तो आप इस तरह की ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली बना सकते हैं। ओके, you to go to table of contents and click on insert table of contents like this। और उसके बाद में आपको क्या क्या चीजें उसमें लिखनी है उसके लिए आप ऑप्शन में जाएंगे। मुझे चाहिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बस 3 चाहिए मुझे, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी और की नीड हो, से फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स, इस तरह कुछ चाहिए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, एंड क्लिक ओके एंड क्लिक ओके। ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट आ गई, जिसमें कि जो जो आपने स्टाइल लगाई है उसका अपने आप नाम आ गया, उसका पेज नंबर आ गया और ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए मेरा एक ये चेंज होता है, फॉर एग्जांपल एविडेंस ऑफ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कस्टम क्लाइमेट चेंज,
वैसे होता नहीं, कस्टम क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, पर जैसे ही आप ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे जाके F9 करेंगे, F9 इज अगेन इट्स अ फील्ड, तो जैसे ही F9 की अपडेट इंटायर टेबल, और ये कस्टम में आ गया। तो जो जो कंटेंट आप ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई, वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में अपने आप आ जाएगा। और इन केस कोई कंटेंट ऐड होता है बीच में या डिलीट होता है, पेज नंबर चेंज होते हैं, पेज नंबर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। ये इसका बेनिफिट है टेबल ऑफ कंटेंट। सिमिलरली एक स्टाइल आप सेट कर सकते हो फॉर लिस्ट ऑफ फिगर्स, एक कर सकते हो लिस्ट ऑफ इमेज, एक हो सकती है लिस्ट ऑफ चार्ट्स, एक हो सकता है लिस्ट ऑफ टेबल्स, और इस तरह से कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला है ना, हिस्ट्री ऑफ CO2, ये होना चाहिए इटैलिक, सेंटर, फॉन्ट थोड़ा छोटा, और ये होना चाहिए, ये पहला इमेज है। तो इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ पे जाके स्टाइल में सेव सिलेक्शन एज डॉट इमेजेस। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि वो आगे आगे दिखाएगा, लगाता तो नीचे दिखाता, ठीक है ना। तो ये पहली हो गया। दूसरी इमेज देखते हैं कहां पर है, दूसरी इमेज यहाँ पर है ना, हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर ओशंस, ठीक है। इसमें मैं खाली इमेज पे क्लिक करूंगा और ये इसने स्टाइल अप्लाइड कर दी, ठीक है। सिमिलरली आपकी और सकती है, अभी शायद इसमें नहीं होगी, हाँ इसमें नहीं है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ओनली 2 इमेजेस, तो आपको लिस्ट ऑफ इमेजेस चाहिए, तो आप लिस्ट ऑफ इमेजेस के लिए क्या कर देखेंगे, लिस्ट ऑफ इमेजेस, ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा टाइटल हो गया। और यहाँ पे जाके पेज लेआउट रेफरेंस में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ऑप्शंस में जाके बाकी सब हटा देंगे। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे केवल इमेजेस वाला चाहिए। तो एक नंबर पे इमेजेस रखा, क्लिक हो गया, ये आ गई 2 इमेज, ये अभी हमने बनाई। इसी तरह से आप लिस्ट ऑफ टेबल बना सकते हो, लिस्ट ऑफ चार्ट, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ जो जो भी आप बनाना चाहे उस तरह की आप लिस्ट सारी ऐड कर सकते हो। सो टेबल ऑफ कंटेंट इज एक्चुअली अ वेरी यूजफुल थिंग व्हेन यू वांट टू create a summary of the entire document in one particular page, 1 or 2 particular pages. Okay, next is footnote and note. तो फुटनोट एंड नोट क्या होता है, जनरली कोई टेक्निकल टर्म है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक कोई टेक्निकल टर्म है, एक कोई टेक्निकल टर्म उठा दो, नासा। ओके, अब मुझे नासा का फुल फॉर्म लिखना है ना, नासा का मुझे फॉर एग्जांपल फुल फॉर्म लिखना है। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस, क्या है उसका नासा फुल फॉर्म, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये है इसका फुल फॉर्म। तो अब मुझे नासा का फुल फॉर्म लिखना है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जब आपके बहुत सारे छोटे छोटे कई सारे आपके होते हैं जो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, इस तरह का डिस्क्रिप्शन होता है, तो आपके ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें हो जाती है, और दैट इज नॉट वेरी मच एडवाइजेबल। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें इसका एक फुटनोट लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप इसको एक फुटनोट लगाना है, इसको सिलेक्ट करिए एंड क्लिक ऑन इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 इसने अपने आप लगाया है यहाँ पर, यहाँ 1 अपने आप लगाया है इसने, और यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। नाउ अगेन फॉर एग्जांपल मुझे लेना है ग्रीनलैंड, नहीं, क्यूबिक किलोमीटर को मान लो M3 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने M3 लिखा हुआ है, KM3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब KM3 का क्या मतलब हुआ, KM3 का मतलब ये हुआ क्यूबिक किलोमीटर। तो इसने ये 2 अपने आप लगाया ऊपर, KM3 के ऊपर में 2 अपने आप लगाया, और यहाँ पे 1 अपने आप लगाया।
अब बीच में अगर कोई आता है, बीच में कोई, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा, है ना। आर्कटिक सी आइस हैज डिक्लाइन रैपिडली, रैपिडली में लगाना है मुझे, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देना है, फुट नोट। ये देखो 2 अपने आप हो गया और क्यूबिक किलोमीटर अपने आप 3 में चला गया। तो इसको लेना है तो वेरी फास्ट पेस, ठीक है ना। तो रैपिडली का क्या मतलब हुआ, तो 2 मतलब वेरी फास्ट पेस, क्यूबिक किलोमीटर, KM3 मतलब क्यूबिक किलोमीटर, और नासा का फुल फॉर्म हो गया ये वाला, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरह के फुटनोट लगाने चाहिए आपको, आपको ब्रैकेट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी चाहिए, अदरवाइज क्या होता है वो बहुत क्लमजी हो जाता है ना, आपका डॉक्यूमेंट बहुत क्लमजी हो जाता है, और उसमें जो पढ़ने वाला है उसको हर बार याद रखना पड़ता है कि उसका फुल फॉर्म कहाँ लिखा था पास्ट में, है ना, जब रिपोर्ट बड़ी हो खास करके। सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू शुड गो फॉर फुटनोट्स एंड एंड नोट्स। एंड नोट मतलब सभी का डेटा लास्ट में चैप्टर के एंड में है, फुटनोट मतलब उसका डेटा उसी के पेज के एंड पे है, ये अंतर है फुटनोट और एंड नोट में, बाकी बिहेवियर सेम है। Okay, citation is for images, but I personally don't prefer this citation. No, it's not, sorry, citation, caption. Caption is for images, but I personally don't prefer these captions. I prefer list of figures and list of images like that. Okay, footnote, endnote हो गया. Citation, citation is for citing the source of information. For example, यहाँ पे लिखा है they have data from ये एक्सपेरिमेंट ने शो किया है कि इतना किलोमीटर, क्यूबिक किलोमीटर लूज कर रहे हैं, तो ये कहाँ से उठाया डेटा, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रिसर्च पेपर से लिया होगा ना, तो ये जो रिसर्च पेपर है इसको आपको साइट करना है यहाँ पे, वो आप साइटेशन से कर सकते हैं। एंड ये देयर आर मेनी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल। जनरली हमको ये बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि साइटेशन जनरली जो रिसर्च पेपर लिखते हैं उनको ज्यादा काम आता है, हमको इतना काम आता नहीं है। ओके, ये हो गया, देन कैप्शन हो गया, ये हो गया। मार्क एंट्रीज फॉर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब बुक जब आप पब्लिश करते हैं तब जो टेक्निकल टर्म्स बुक में जगह जगह यूज हुए हैं उनका एक लास्ट में इंडेक्स बना होता है, ये पर्टिकुलर टर्म कहाँ कहाँ किस किस पेज पे यूज हुआ है, इस तरह का इंडेक्स आप यहाँ पे एंट्री मार्क करके लास्ट में इंसर्ट इंडेक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर आर्कटिक पकड़ लेता हूँ मैं, आर्कटिक में एंट्री मार्क करी, मार्क, ठीक है ना, एक ये एंट्री मार्क हुई। फिर उसके बाद में से फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में रेफरेंस में एंट्री मार्क करी, मार्क, और एंटार्क्टिक में एक मार्क करी, फिर से मार्क, एंट्री मार्क, ठीक है ना। एंड से नासा का आपने एक एंट्री मार्क करी, अभी मैं 4 ले रहा हूँ पर आप बहुत सारी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो आपने ये 4 कर दी यहाँ पे, एक यहाँ पे करी थी, एक यहाँ पे ग्रीनलैंड में करी थी, एक आर्कटिक में करी थी, एक अंटार्कटिक में करी थी। और सबसे लास्ट में जाके जब इंडेक्स एंटर करते हैं, सबसे लास्ट में, ये पेज का लास्ट है, यहाँ पे जाके आप जब इस पे एंट्री करेंगे तो रेफरेंसेस में आके इंसर्ट इंडेक्स करेंगे और क्लिक कर दीजिए। तो अंटार्कटिक कहाँ कहाँ पे पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है, आर्कटिक पेज नंबर 7 पे था, नासा भी पेज नंबर 7 पे था, ग्रीनलैंड भी 7 पे था। इस तरह की आप इवन यहाँ कुछ करता हूँ, जैसे रिजर्वायर्स करता हूँ, एक एंट्री यहाँ मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी सारी पेज नंबर 7 पे हो गए ना। तो ड्रॉट, ड्रॉट मैनेजमेंट को एक मार्क एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद में नहीं हुआ, नहीं, फिर उसके बाद में थ्रू आउट हिस्ट्री अडॉप्टेशन, मार्क एंट्री, मार्क, फिर देन ग्रीन कार्ड्स की एक एंट्री करते हैं। अभी मैं खाली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि पेज नंबर अलग अलग हो जाए। आप देखिएगा, इसको मैं अपडेट करूंगा, इस पे गए, प्रेस F9, ये आपका इंडेक्स बन गया। कौन सा टर्म किस पेज पे अवेलेबल है इसका एक इंडेक्स आप बना सकते हैं, और इस इंडेक्स का एक वो भी प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी अभी हटाता हूँ फॉर टाइम बिंग, और रेफरेंसेस में इंसर्ट इंडेक्स में ये ऑप्शन है, यहाँ पे कितने कॉलम्स चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, रनिंग या इंडेक्स चाहिए, है ना, किस टेम्पलेट से उठाना है, कहाँ से कैसे उठाना है ना, ये सब तरह की चीजें आप कर सकते हो। ये मॉडर्न है, जैसे ये वाला है, ओके, ये आपका इंडेक्स आ गया, ABCD अल्फाबेट वाइज आ गया। तो इस तरह से यू कैन क्रिएट इंडेक्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जनरली बड़ी बुक जो लिखी जाती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, बाकी जगह पे इस्तेमाल होता नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। साइटेशन इज फॉर
साइटिंग द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर की इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है, आप उसमें मार्क कर सकते हैं कि साइटेशन मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली है। पर ये भी जनरली जर्नल पेपर में जो पेपर पब्लिश होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, ज्यादा नहीं होता है। अभी तक का सब कुछ क्लियर है? एवरीवन इज ओके विद दिस करंट कंटेंट? Please write in the chat window if it is okay or not. Or now we will move to the next review. So I'm just asking ना, बताइए सब कुछ क्लियर है अभी? यूजफुल इंफॉर्मेशन है और आप लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इज इट यूजफुल? जो अभी आप सीख रहे हो, जो लोगों को लगता है कि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगला जो फीचर मैं बताने जा रहा हूँ, जो फीचर अभी तक लगता है आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तो अगला जो फीचर बताने जा रहा हूँ उसको तो मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली इस्तेमाल करोगे। क्योंकि अगला वाला जो फीचर है वो इतना इंटरेस्टिंग है और इतना यूजफुल है कि वो लगभग हर डॉक्यूमेंट में आपको काम आ सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको उसको इस्तेमाल करते आता हो। ठीक है? सो आई एम गोइंग टू टेक लाइक 10 मोर मिनट्स। अगले 10 मिनट में आपको एक जो मुझे पर्सनली फील होता है कि एमएस वर्ड का सबसे पावरफुल फीचर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक के जो है वो सब तो उसके सामने बच्चे हैं, मतलब really में the next feature that I'm going to discuss is the father of all the other features that were discussed during the today's session. अभी देखिए, आपको फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर केस में कुछ लेटर्स डिस्पैच करने, ठीक है? वो लेटर आपके इन हाउस भी हो सकते हैं और आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। एंड यू हैव ए लिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है? उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड वे में, जो लिस्ट ऑफ पीपल एड्रेसेस है उस पे आपको लेटर्स भेजने हैं या ईमेल्स भेजने हैं, उसको कहते हैं मेल मर्ज। तो मेल मर्ज का यहाँ पे जो काम होता है मेलिंग में, आप देखेंगे ये पूरा एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा रिबन उसके लिए डेडिकेटेड है। पर मोस्टली इसके ऑप्शन डिसेबल्ड है, ऑप्शन इसके सारे डिसेबल्ड है, लगभग सारे ही। क्यों डिसेबल्ड है? क्योंकि अभी इसमें कोई एड्रेस नहीं है, इसके पास कोई लिस्ट ऑफ एड्रेस नहीं है, लिस्ट ऑफ नेम्स नहीं है। सो as soon as you connect your list of addresses, your word file to a list of addresses, then immediately all these options will be highlighted. Okay, ये आपके enable हो जाएंगे। So let's see how to do that. ये तो चलिए लेटर तो one thing, but I will give you a small case study जिसमें कि I have that data or not. Just a second. Let me see. अगर मुझे वो डेटा मिल जाता तो आपको रियल टाइम डेटा पे ही मैं वो करके बता दूंगा। Hopefully I will get it. मिल गया। ठीक है? ये एक रजिस्टर है, जस्ट ना,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिकॉज आई हैड टू अटेंड दिस इम्पोर्टेंट कॉल। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम कि मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। जब मैं एनसीए में इंदौर में पोस्टेड था तो आई यूज टू हैंडल द केसेस ऑफ आरटीआई। तो आरटीआई के मैकेनिज्म बताते हैं क्या होता है आरटीआई में। आई होप यू आर एबल टू हियर इट राइट। सो आरटीआई में क्या होता है, कोई एक एप्लीकेशन आती किसी एप्लीकेंट से, वो आरटीआई की एप्लीकेशन आई किसी एप्लीकेंट से और उसको हमको कंसर्न डिवीजन में भेजना होता है। तो नंबर वन तो वो रिसीव हुई, ठीक है, उसमें उसने हो सकता है कुछ फीस दी हो, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जो भी है, वो फीस दी। तो उस फीस को एक कवर लेटर लगा के भेजना पड़ता है फाइनेंस सेक्शन में, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो कंसर्न डिवीजन है उस कंसर्न डिवीजन को हमको उस चिट्ठी को आगे बढ़ाना पड़ता है कि आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, नंबर टू, दूसरी चिट्ठी होगी। तीसरा होता है उस कंसर्न डिवीजन से जब हमारे पास रिप्लाई बन के आता है तो उसको हम अप्रूवल के लिए जो भी हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर है या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके पास भेजते हैं, नंबर थ्री, तीसरी चिट्ठी होगी। और इस चिट्ठी के साथ में नोटिंग भी लगती है क्योंकि अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो डीएफए के साथ में एक नोटिंग लगती है, नंबर फोर। और फाइनली जब वो चीज अप्रूव होके आ जाती है उसके बाद हमको एप्लीकेंट को जवाब देना होता है, नंबर फाइव। और नंबर फाइव के बाद में इन केस वो अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है तो हमको उसको किसी और थर्ड डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना होता है, नंबर सिक्स। तो देर आर सिक्स फॉर्मेट्स इन विच वी हैव टू राइट द सेम इंफॉर्मेशन कि एप्लीकेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने किस डेट में आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई का रेफरेंस नंबर क्या है, अगर वो पोर्टल से आई थी या उससे उससे आई थी, पोर्टल आरटीआई के पोर्टल से आई थी या ऑफलाइन आई थी, उसने कितने रुपए का डिपॉजिट किया पैसा, एंड उसकी फाइनल एक्शन क्या रहा, उसको हमने फॉरवर्ड किया कि रिप्लाई किया कि रिजेक्ट किया कि व्हाट्सएवर, है ना। इस तरह से हमारे पास 6 अलग अलग तरह के फॉर्मेट होते हैं जिसमें हमको जवाब बना के अलग अलग जगह पर देना होता है। जस्ट सेकंड। मेरा इंटरनेट चला गया था थोड़ी देर के लिए, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, मेरा इंटरनेट चला गया था इसलिए थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था।
I hope you are able to see my screen now. Okay. 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 So अभी देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारे जनरली आरटीआई में 5 से 6 लेटर ऐसे बनते थे जो कि हमको सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग लेटर में देनी होती थी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे ही मेरे पास कोई आरटीआई आती थी, इमीडिएटली आई यूज्ड टू क्रिएट अ एंट्री इन दिस. तो फॉर एग्जांपल बी रॉय करके कोई पर्सन है, उसने एक आरटीआई लगाई, तो उसमें फाइल नंबर आ जाएगा, देन उसका नाम आ जाएगा, उसने कब वो पर्टिकुलर आरटीआई लगी वो आएगा. ये तो ऑब्वियसली बाद में आती है एंट्री, है ना. उसमें लेटर का नंबर या रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, कितने रुपए उसने दिए हैं, वो आरटीआई ऑनलाइन आई है कि ऑफलाइन आई है, एमओडब्ल्यूआर से ट्रांसफर होके आई है, डायरेक्ट आई है, और क्या उसकी इन्फॉर्मेशन आस्क थी, उसका फाइनल रिप्लाई क्या है, ये भी बाद में एंट्री होती है. ठीक है ना. तो अभी देखिए, ये वाली जो एंट्रीज होती है जनरली ये बाद में एंट्री होती है, ये वाली और ये वाली. ठीक है ना. ये वाली और ये वाली एंट्री बाद में होती है, लेकिन ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्रीज उसी टाइम हो जाती है जब वो आरटीआई आती है. अब एक बार हमने एक्सेल में एंट्री कर ली, उसके बाद हमको जितने भी लेटर बनाने, जितनी भी नोटिंग बनानी है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सेल से. और एक बार ये डॉक्यूमेंट एक्सेल से कनेक्ट हो गया, उसके बाद में आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि उस फाइल नंबर में उसमें नाम क्या था, उसकी डेट क्या थी, उसका एड्रेस क्या था. और ये हर बार आपको चेक करने की नीड नहीं है, ये एक बार में ऑटोमेट हो जाएगा. और उसके बाद हर डॉक्यूमेंट में आपके खाली उस रो नंबर को सिलेक्ट करना है, रो नंबर को सिलेक्ट करते से ही सारा इंफॉर्मेशन एक्सेल से उठा लेगा. एक्सेल इवन डेटाबेस से भी हो सकता है, और वो आपका पूरा लेटर ड्राफ्ट कर देगा. उसके बाद खाली आपको कंट्रोल पी करके प्रिंट निकालना है और साइन करके भेजना है. सो इससे आपका काम बड़ा इजी हो जाता है. तो मैं आपको एक करके बताता हूँ. जैसे मुझे एक लेटर लिखना है, ये मेरा एक लेटर है, और मुझे लिखना है, अभी मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल, पहला लेटर मुझे लिखना है इंटरनल एफओ को लिखना है फाइनेंस विंग में कि उसने इतने रुपए जमा करे हैं और उसको इतनी फीस जमा की जाए. टू ये लिखा. ये इनफैक्ट अभी मुझे टाइप करना पड़ रहा है, बाद में तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे केवल उसको, मुझे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को केवल कॉपी पेस्ट करना रहेगा, अगली बार में ये अपने आप लिखा जाएगा. ठीक है. तो एक काम करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को लेते हैं. इतनी मेहनत क्यों करनी है. अगर एक बार बन गया हमारे पास, तो हम इसको डायरेक्टली उठा सकते हैं. अच्छा अभी नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है मेरे पास. सॉरी. ये आपको एक ही बार लिखना है, उसके बाद नहीं लिखना है. ठीक है. ठीक है. सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ फीस ऑफ रुपीज, कितने रुपए हैं ये हमारे एक्सेल शीट में लगा हुआ है. ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीआई फाइल बाय, जस्ट सेकेंड, अगेन आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन. फाइल बाय, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा ऑन, और उसके बाद डेट आ जाएगी. ठीक है. रिगार्डिंग, अभी देखिए, अभी आपके पास यहाँ पे कितने रुपए हैं उसकी एंट्री इसमें है. ठीक है. ये एंट्री है. उसके बाद में इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीआई फाइल बाय, इसमें आपके पास नाम अवेलेबल है, और ऑन, यहाँ पे आपके पास इसकी डेट भी अवेलेबल है.
ठीक है, ये डेट भी अवेलेबल है। अब हमको केवल इसमें वो उस डेटा को कनेक्ट करना है। एक्सेल से कनेक्ट करने का तरीका ये होता है, यू गो टू मेलिंग्स एंड यू क्लिक ऑन सिलेक्ट रिसिपेंट एंड यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, आपके पास लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको टाइप नहीं करनी है, आपको टाइप करनी पड़ेगी तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपके पास लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सेल फॉर्म में, तो यूज एन एक्सेल एग्जिस्टिंग लिस्ट करना है। और मैंने डेस्कटॉप पे रखा था शायद, इसको एमएस वर्ड में रखा होगा, आरटी रजिस्टर ये रहा। इसको आप ओपन करेंगे और इसमें शीट पूछेगा, ये शीट का नाम है आरटी रजिस्टर नाम से शीट है। ठीक है, तो आरटी रजिस्टर नाम से शीट है, क्लिक ओके। और ये हमारे पास सारे, ये देखिए हाईलाइट हो गए सब। नाउ दीज ऑल थिंग्स आर इनेबल्ड। तो आप एडिट करेंगे रिसिपेंट लिस्ट तो ये सारी लिस्ट आ जाएगी, जितनी भी आपके अंदर एक्सेल में एंट्री है वो सारी इसमें आ गई, वो सारी इसमें आ गई, राइट। नाउ ऑफ रुपीज, यहाँ पे क्या है, पहला वाला रुपीज में, पहले रुपीज में क्या है, कितने रुपए है, यहाँ पे देखना है। अभी हमारा जो एक्सेल शीट है उसमें कितने रुपए की फीस दी है वो लिखा है हमने एएमटी वाले कॉलम, एएमटी वाले कॉलम में, एएमटी। इंसर्ट में एएमटी, एएमटी कहाँ है, अमाउंट, एएमटी ये रहा, ये आ गया, एएमटी आ गया। ये एक फील्ड है, एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू अपनी उठाएगा उस एक्सेल शीट से, डिपेंडिंग ऑन द रो। इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीआई फाइल्ड बाय, यहाँ पे आएगा नेम, इंसर्ट मर्ज फील्ड नेम, नेम आ गया। ऑन, ऑन क्या डेट थी, ये नेम था, फिर डेटेड, डेटेड में मतलब ऑन डेट। ठीक है, इंसर्ट बाय डेटेड, इंसर्ट ऑन दिस डेटेड, है ना। फिर आएगा सर फाइंड ऑफ रुपीज submitted by name in reference to her RTI application received in this office by reference number हमारा है, रेफरेंस नंबर किस नाम पे था, लेटर नंबर, इसमें था लेटर नंबर, डेटेड, ये मेरा कंटेंट हो गया, राइट। अब मजे की बात ये है, ये सारे वेरिएबल है जो हाईलाइट दिख रहे हैं इसमें, ये सारे वेरिएबल हैं और ये सारे वेरिएबल की वैल्यू एक्सेल से आ रही है, ओके। और अभी रो नंबर 1 है, जब आप इसको प्रिंट करोगे तब ये वैल्यू एक्चुअल में एक्सेल से उठाएगा। अभी इसके केवल वेरिएबल की वैल्यू मालूम पड़ रही है, उस वेरिएबल में वैल्यू क्या है ये पता नहीं चल रही है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रीव्यू रिजल्ट। ठीक है, तो आप जैसे ही इसमें आप चेंज करोगे ये सारे आने लग जाएंगे। अभी मेरा एक्चुअली एक्सेल शीट में हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बट अगर आपका लेटर भी हिंदी में बना है और आपका डेटा भी हिंदी में है, या आपका लेटर भी इंग्लिश में बना है और ये भी इंग्लिश में है, तो आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने एक्चुअली इंग्लिश में करा, हिंदी में करा, इस वजह से गड़बड़ हो गई। या फिर एक काम करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करने का देखते हैं, शायद हो जाए। अच्छा, हो नहीं रहा है यहाँ पे, हिंदी में ट्रांसलेट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। पर आपका अगर डेटा इंग्लिश में है तो आप इसमें इंग्लिश में टेक्स्ट आने लग जाएगा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आपको जैसे मान लीजिए रो नंबर इसका 418 का बनाना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये था, मान लो विवेक का बनाना है 417, रो नंबर 277 है, राइट। रो नंबर 277 में जैसे ही आप जाएंगे मेलिंग्स पे, रो नंबर आपको लिखना है 276, क्योंकि रो नंबर 1 जो है आपकी वो हेडर है, और एंटर करना है। ठीक है, विवेक हो गया। ठीक है, तो आप देखिए सारे ही आपके विवेक, डेट, विवेक, ₹0 था इसका, और इसका नंबर आ गया और उसका डेट आ गई, ये सारे आ गए। अगला लेटर अगर आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल ये तो फाइनेंस ऑफिसर को बनाया, अगला लेटर आपको बनाना है, आप इसमें कॉपी करिए
यहाँ पेस्ट करिए। अब आपको फाइनेंस ऑफिसर के कंसर्न डिवीजन को देना है। ओके, कंसर्न डिवीजन इज फॉर एग्जांपल डीडी एडमिन, है ना, डीडी एडमिन। उसके बाद सबमिशन ऑफ फीस की जगह आरटीआई फाइल बाय, इसमें फीस का नहीं आएगा, रिगार्डिंग बस ये आरटीआई फाइल बाय ये, है ना। प्लीज फाइंड आरटीआई फाइल्ड बाय विवेक इन रेफरेंस टू इज यू आर requested kindly give the data so that the same to him। ठीक है, ये हो गया दूसरा लेटर। फट से प्रिंट किया, निकाला, साइन कराओ, भेज दिया, है ना, ये दूसरा लेटर हो गया। फिर उसके बाद में आपको भेजना है अप्रूवल के लिए, अप्रूवल के लिए आपको भेजना है, आप यहाँ पे लिखेंगे टू द जनरल मैनेजर अभी फर्क का आरटीआई फाइल, है ना। द डेटा हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम which is put up for kind approval please। और ये चीज आएगी इस केस में नीचे आएगी, क्योंकि हम नोटिंग लिख रहे हैं ना सब्जेक्ट करके, और ये थैंक यू नहीं आएगा इसमें, और ये भी शायद नहीं आएगा, ऐसे ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना। ये नोटिंग बन गई। उसके बाद में जो फाइनल रिप्लाई जाना है, वो फाइनल जो रिप्लाई जाना है, उसके बाद फाइनल रिप्लाई बनाना है हमको। फाइनल रिप्लाई में आपका ये वाला आएगा, इसमें यहाँ पे एड्रेस आएगा उसका एप्लीकेंट का, ठीक है। एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा तो यहाँ पे पहले नाम आएगा, कामा करके एड्रेस लाइन 1 आएगा, ओ सॉरी एड्रेस लाइन 1 आएगा, कामा करके एड्रेस लाइन आएगा। उसके बाद में पिन, पिन आएगा आपका पिन, ठीक है, ये आ गया। अब ये पूरा एड्रेस आ गया उसका, अब ये पूरा एड्रेस आ गया बाय यू वाइड रेफ नंबर, रेफरेंस नंबर ये ऑन दिस डेट, ठीक है। प्लीज फाइंड विथ रेफरेंस टू बाय यू वाइड आरटीआई वाइड रेफरेंस नंबर ये डेटेड ये, ठीक है, और ये सब आ गया। अब इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आपको एक बार करनी है, राइट। नेक्स्ट टाइम से क्या करना होगा, आपने ये 4-5 लेटर एक बार बना लिए और जो फॉर्मेटिंग करनी दुनिया भर की वो सारी कर ली। उसके बाद अगली बार में एक बार में आपने जो फॉर्मेटिंग करनी जो हेडर लगाने, फुटर लगाने, पेज नंबर लगाने, सब लगा दिए। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना रहेगा, केवल यहाँ पे रो नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको ये चीज बनानी है, मान लीजिए इनके लिए या इसके लिए लगाना है, तमिलनाडु वाले एक आदमी के लिए, कुमुदेश्वर ना 269 रो नंबर, तो 269 में 268 लिख दो यहाँ पर। तो ये उसका सारा कवर लेटर भी बन गया, उसका एफओ का कितने रुपए देने हैं आपने जमा उसका लेटर भी बन गया, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट जहां से मंगाना उसका भी लेटर बन गया, जो आपको अप्रूवल लेना उसका भी लेटर बन गया, और जो फाइनल रिप्लाई देना उसका भी बन गया। केवल आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है। इनफैक्ट एक्सेल शीट में आप उसका भी कॉलम बना सकते हो कि आपने क्या लिखा उस लेटर में। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि ये जो शीट बनी हुई है इसका प्रिंट आउट लेके इसको आप ऐसे क्वार्टरली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनानी बना सकते हो। काउंटिंग भी इजी हो जाती है, कितने के रिप्लाई किया, कितने को रिजेक्ट किया, कितने को ट्रांसफर किया, और कौन कौन सी पेंडिंग है, कितने दिन में पेंडिंग है, और कितने दिन में रिप्लाई दिया। एक ट्रैक हो जाता है, आपके पास एक ट्रैक मिल जाता है कि कौन सी आरटीआई आपने डिले कर दी, कौन सी आरटीआई टाइम पे दी, कौन सी ट्रांसफर की गई और किसको ट्रांसफर की गई, इस तरह का सब आप। अच्छा, ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने का और बड़ा इजी है, ये वाला जो है इसको कॉपी करो, ट्रांसफर करना है टू, अब टू में यहाँ पे हटेगा, टू में जाएगा आपका टू, ये आ गया, नहीं स्टेटस नहीं, फाइनल एक्शन ना, फाइनल एक्शन ये वाला। उप निदेशक प्रशासन को फॉरवर्ड करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को इसको करनी थी उज्जवल जैन की 380,
है ना, 235 234 लिखूंगा मैं, 234। अब ये इसको 2 जाएगी, RTI फाइल बाय यहाँ पे नाम आ जाएगा और ये आएगा, और यहाँ लिखा जाएगा इट इज टू स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू योर डिपार्टमेंट, काइंडली गिव द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट, लाइक दैट। तो आप ये देखिए आपका काम कितना ईजी हो गया कि आपने 5 लेटर अलग अलग बनाए हैं, एक बार फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, लेटर हेड के आपने ऊपर हेडर फुटर लगा दिए, फॉर्मेट अप्लाई कर दिया और एक बार लिख दिया। उसके बाद आपको डेटा में कहीं पे ये ध्यान नहीं देना है कि वो पर्टिकुलर RTI जो है उसमें कहीं आपने डेट गलत डाल दी या आपने कहीं लेटर का रेफरेंस नंबर गलत डाल दिया, एड्रेस गलत डाल दिया, इसकी आपकी टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इसका मेजर बेनिफिट ये है कि जो एक्सेल जो है, एक्सेल इज गुड फॉर हैंडलिंग डेटा, ओके, एंड वर्ड इज गुड फॉर डूइंग द ड्राफ्टिंग। तो आप ड्राफ्टिंग करिए वर्ड में और डेटा हैंडलिंग छोड़ दीजिए एक्सेल में, और इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप लेटर बनाइए, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक RTI का रिप्लाई बनाने में, पूरी प्रोसेस करने में, सारे लेटर ड्राफ्ट करने में करीब करीब 30 से 35 मिनट का टाइम लगता था। और एक बार मैंने ये मेल मर्ज करके ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद पूरे सीक्वेंस में हार्डली 10 से 15 सेकंड लगते थे। तो कहाँ हमको लगते थे 40-30 मिनट, 40 मिनट एक RTI के सारे डॉक्यूमेंटेशन में, और ऐसे में हार्डली 10 से 15 सेकंड में हो जाता था काम, क्योंकि खाली रोल नंबर सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल भी करके 4 प्रिंट आउट लेने, साइन करके भेज दे, दैट्स इट, एक ही बार में काम हो जाता था। तो इससे काम बड़ा इजी होता है। और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर केस का, जैसे ये पर्टिकुलर केस है, ये वाला है हमारा उज्जवल जैन का, ठीक है, उज्जवल जैन का है, 2022/9/18 की उसकी RTI थी। इसको मुझे एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो उसका तरीका ये होता है, फिनिश मर्ज करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जाते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और उसमें करंट रिकॉर्ड करके ओके कर दीजिए, एक नया फॉर्म बन जाता है जिसमें सारे वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। अब जो इसमें वेरिएबल थे, इस वाली फाइल में जो वेरिएबल थे वो खत्म होके एक डॉक्यूमेंट आपके पास प्लेन बन गया जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इसको आप सेव करके रख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या दिया था। प्रिंट आउट लेने के बजाय स्कैन करके भी रख लोगे आप, या सेव करके वर्ड फाइल में भी रख लोगे, या PDF बना के रख लोगे, आपके पास वो रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा। ओके, सो दिस इज इन माय व्यू, mail merge is the most powerful feature where you can use the data handling capacity or data handling capability of Excel along with the drafting capability of MS Word in conjunction, so that आपका data रहेगा Excel में और आपका formatting रहेगी, drafting रहेगी Word में रहेगी। And this is how you can actually improve your accuracy, you can improve your speed। एक मीटिंग चल रही है, आप रख दीजिए फाइल तो कर दूँ। Okay, this is how you can improve your speed, you can improve your efficiency, capacity, and the job which is generally requires maybe an hour or so you will be able to do it within seconds. Not more than 30 seconds is required once you do all the formatting, and you will need time, है ना, एक बार आपको टाइम करना, और जो भी पर्टिकुलर डेटा की एंट्री करनी है उसमें एक बार आपको टाइम देना है, ये वाला। और ये भी जनरली ऑनलाइन पोर्टल है तो ये कॉपी पेस्ट ही हो जाता है, एक बार आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद बहुत ही इजी है कि आप इसको फटाफट खाली रोल नंबर डालना है, प्रिंट आउट लेना है, साइन करके भेजना है। ज्यादा ना कहीं कहीं कोई ड्राफ्टिंग करनी, ना कोई ये चेक करना है बैठ के कि हमने सब डेटा सही लिखा है नहीं लिखा। इसमें डेट का फॉर्मेट अलग आ रहा है, पर इसको चेंज किया जा सकता है, उसका भी तरीका है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, इतनी चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये जो 18/9/2022 आना चाहिए था, ये 9/18/2022 आ रहा है, इसको कैसे चेंज किया जाए, छोटी सी हिंट दे रहा हूँ। इसको राइट क्लिक करके यहाँ टॉगल फील्ड को करके यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। ये मैं थोड़ा सा चेंज आपको हिंट दे रहा हूँ, करिएगा आप खुद। आप एक बार इसको ट्राई करिए और इसको टॉगल फील्ड करके ये फील्ड कोड से चेंज करके आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक इट इज ऑलरेडी 4:30 ना, 4:40 हो गया। सो हमारी रिव्यू वाली टैब छूट गई है, बट इस रिव्यू वाली में बहुत ज्यादा नहीं, इसमें ट्रैक चेंजेस वाला मोड बड़ा अच्छा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, हाउ टू यूज ट्रैक चेंज मोड इन MS वर्ड। उसमें आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। ये भी काफी, ये ट्रैक चेंजेस वाला जो मोड है ये बड़ा यूजफुल होता है। तो आप सर्च कर लीजिएगा खुद से, जैसे इसको मैंने बोल्ड किया तो इसको वो ट्रैक करेगा कहाँ पे क्या बोल्ड किया है, कहाँ पे अंडरलाइन किया तो इसको कर लेगा।
इस तरह से ट्रैकिंग, जो डिलीट कर रहे हो उसको ट्रैक करेगा, जो ऐड करोगे इसको भी ट्रैक करेगा, और इसमें फिर वन बाय वन जाके आप सेट कर सकते हो कौन से चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके इसका कोई ट्यूटोरियल पढ़ के आप कर लीजिएगा। कंपेयरिंग टू डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद पासवर्ड, व्यू पे बहुत सारे ये वाले ऑप्शन है, ये वाले जनरली हमको बहुत ज्यादा काम नहीं आते हैं, बट डेवलपर तो मैं टच ही नहीं कर पाया। अगर मुझे आपको एमएस वर्ड को अच्छे से बताना है तो कम से कम 3 सेशन या कम से कम 4 सेशन तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके मैं आपको सारी चीजें बता पाता। बट सिंस द टाइम इज शॉर्ट, आई विल बी क्लोजिंग नाउ। you are free to ask any queries to me on my email address, so I would suggest आप इस पे कुछ क्वेरीज अगर आपकी हो तो पूछ सकते हैं, आप इस पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑन द रिवर्ट मेल, और my contact details have already been shared by NWA to you, I hope. So I would like to close this session now. Over to you, Swarab. Okay, thank you, sir. Thank you so much for sharing your valuable insights and experience with our participants from this ITP batch of junior engineers. Thank you so much, sir. Despite your ill health, as we could see, you gave your time out of your busy schedule, and it has really been an honor to listen to you. And definitely the participants also must have gained a lot of useful insights on this particular topic of using MS Office. So thank you so much, sir. Thank you, Saurabh. It's always a pleasure for me to connect with NW anytime. It's like a second home to me. I have been there for 5 years, and it's really, when I see you guys, I feel, I go into nostalgia and I feel that कि हाँ, पुरानी यादें ताजा करने का भी मुझे काम मिलता है और अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होना। So thank you once again. Thank you so much, sir. And participants, thank you. So now we come to the closure of our day 1. So similarly, tomorrow we'll be starting at 10 o'clock in the morning. आपका लिंक जो है वो सेम लिंक रहेगा, यही लिंक जो है 5 दिन आपका मतलब वर्क करेगा। तो प्लीज, so I request all of you to join tomorrow morning at 10 o'clock. We'll be having our session tomorrow. Our entire day is focused on the establishment matters, your leave rules, your pay and allowances, your other facilities. So it will be an interesting one. So I request all of you to join before time, join slightly before 10 o'clock so that we can check our connections and other internet issues. And now, as I already informed you, I've already uploaded the quiz on the Moodle platform. So based on whatever topics have been covered today, we have already formulated the quiz and uploaded on the Moodle. So you can just go and attempt the quiz, and you have time up till tomorrow, 2 o'clock, 2 p.m. tomorrow to submit it. There are 20 MCQs in there. Only one option is correct. So you can attempt all, there's no negative marking or such. So attempt all and submit it before 2 o'clock tomorrow. It is mandatory to be done by all. Please, I am again reminding you, it is mandatory to be done by all. Your daily attendance and your submission of assessment is what we are looking to judge whether you have attended that day's program or not. Okay, so thank you so much for joining for today, and see you tomorrow now. Thank you, sir.